नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी में अग्नेस्त्र के साथ एक गिरफ्तार, बुधवार को अदालत में किया गया पेश। पुलिस ने लिया उक्त व्यक्ति को रिमांड पर। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सिलीगुड़ी थाने की पुलिस के द्वारा एक मैगजीन और एक 9mm पिस्तौल के साथ गिरफ्तार आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में पेश कर आरोपी को रिमांड पर ले लिया है और यहां जानने की कोशिश करेगी उसके पास हथियार कहां से आए हैं। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इसमें कोई गिरोह तो नहीं जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी का नाम देवानंद योशी है। पुलिस ने उसे सेना की खुफिया विंग से मिली जानकारी के बाद पकड़ा है। ईस्ट जोन के एएसपी स्वपन सरकार से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड स्थित गंगानगर इलाके का निवासी है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने सफेद पोशाक में मंगलवार रात अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9mm की एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुआ है। बरामद पिस्तौल बिहार के मुंगेर जिले का बना हुआ है। यह पिस्तौल पड़ोसी देश नेपाल के एक उग्रपंथी ग्रुप को पहुंचाने की योजना थी। দেবানন্দ যোশী নামে একজন এখানে ও একটা 9mm পিস্তল নিয়ে সম্ভবত তো নেপালে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল। বিহার থেকে কেউ ওকে চুরি গেছে। আমরা শিলিগুড়ি থানার আন্ডারে কালকে একটা খবর পেয়েছি, একটা সোর্স ইনফরমেশনে ওকে ইন্টারসেপ্ট করি। তারপর ওকে আজকে রিমান্ডের জন্য কোর্টে পাঠাই। 10 দিনের রিমান্ড দেওয়া হবে। কিছু এখনো পাইনি, আমরা তাহলে তদন্ত করে দেখছি। কিন্তু খবর ছিল আমার কাছে গুলি আছে, কিন্তু গুলিটা পাওয়া যায়নি। আমরা সার্চ করে দেখছি। बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ सीपीएम ने दिया ज्ञापन, निकाली गई रैली। बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ सीपीएम की एरिया कमेटी की ओर से बुधवार को सिलीगुड़ी में एक विरोध रैली निकाली गई। सीपीएम के पार्टी कार्यालय हेलकाट रोड स्थित अनिल विश्वास भवन के सामने से निकली सीपीएम की यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए बिजली विभाग कार्यालय के सामने पहुंची। सीपीएम समर्थकों ने यहां बिजली की दर में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ये सभी कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालात बेहद खराब होने का हवाला देते हुए सरकार से बिजली बिल की दर कम करने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर सीपीएम की ओर से बिजली विभाग के अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, অতিমারির সময় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে বহু গরিব মানুষ যারা কাজ হারিয়েছেন, বহু মানুষ যারা ব্যবসা করতে পারছেন না, ঘরে বসে আছেন, বহু মানুষ স্কুল কলেজ বন্ধ, পড়াশোনা করতে পারছেন না, মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। রেশনে গেলে পরে সঠিক পরিমাণে দ্রব্য পাচ্ছেন না। বিদ্যুতের বিল আসছে অনেক টাকা করে। এরকম রয়েছে যে লকডাউনের সময় যারা বাড়িতে ছিলেন না তাদেরও বাড়িতে 4000-5000 টাকা করে বিদ্যুতের বিল এসছে। তারপরে মিটার রিডিং না নিয়ে অনেক বাড়িতে বিদ্যুতের বিল পাঠানো হয়েছে। আমাদের যেটা দাবি, যে অথচ আমরা দেখেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ঘোষণা করেছিলেন যে লকডাউনের সময়কার বিদ্যুতের বিল মুকুব করা হবে। ঘোষণাই সার, অন্যান্য ঘোষণাগুলোর মতোই কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। আমরা আজকে এখানে পার্টির পক্ষ থেকে এই হিলকা রোডের বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরে আমরা ডেপুটেশন দিলাম, স্মারকলিপি দিলাম। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে একটাই, যে অত্যাধিক এবং অস্বাভাবিক যা বিদ্যুৎ মাশুল, সেই বিদ্যুৎ মাশুল অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। 1, 2 নাম্বার হচ্ছে গরিব মানুষ যারা আছেন তাদেরকে 6 মাসের বিদ্যুতের বিল অন্ততপক্ষে মকুব করতে হবে এবং বাড়তি বিদ্যুতের বিল নেওয়া যাবে না। এবং যারা বিদ্যুতের বিল দিতে পারবেন না তাদের ক্ষেত্রেও কোনো রকম ফাইন করা যাবে না। এইটাই আমাদের দাবি। এবং এই এলাকার সমস্ত গরিব মানুষ যারা অনেকে এসছেন এবং অনেকে আসতে পারেননি বিভিন্ন কারণে, আমরা 1000-এরও উপরে গণ আবেদনপত্র জমা দিয়েছি। যারা জমা দিয়েছেন গরিব মানুষরা তাদের বিদ্যুতের বিল মকুব করবার জন্য আমরা আমাদের দাবি এখানে জানিয়ে গেলাম। আগামী দিনে যদি বিদ্যুতের বিল মকুব না হয়, যদি অস্বাভাবিক অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল আসে, তাহলে শুধু শিলিগুড়িই নয় সারা রাজ্য জুড়ে যেইভাবে আমাদের আন্দোলন চলছে। जमीन का पट्टा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम बंग बस्ती उन्नयन समिति ने सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंग बस्ती उन्नयन समिति ने विधवा भत्ता, वृद्धा भत्ता, पट्टे दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संगठन की ओर से शहर में एक रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची।
संगठन के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि गरीब लोगों के हित में उनका संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया नगर निगम पिछले कुछ महीनों से गरीबों के भत्ता नहीं दे रहा है, जिससे इन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उनके भत्ते को जल्द से जल्द देने की मांग की है। बाद में संगठन की ओर से इन मांगों को लेकर नगर निगम के प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন সমিতি দার্জিলিং জেলার পক্ষ থেকে আমাদের আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি। এই ডেপুটেশনে মূল কথা বস্তিবাসী মানুষ, গরিব মানুষ যারা বয়স্ক ভাতা পেত, বিধবাদের ভাতা পেত, বিকলাঙ্গদের ভাতা পেত, কিছু ভাতা ছিল শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নিজস্ব, কিছু ছিল সরকারের। এটা অনিয়মিত হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। অবিলম্বে এগুলোকে শুরু করতে হবে। বন্ধ যেগুলো হয়ে আছে, যেগুলো অনিয়মিত হয়ে আছে সেগুলোকে নিয়মিত করতে হবে। 10 কেজি করে চাল শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দিত। এটা ভারতবর্ষে কোথাও এই কোনো কর্পোরেশন দিয়েছে আমার জানা নাই, কিন্তু দিত। এই 3 মাস ধরে 4 মাস ধরে এটা অনিয়মিত হয়ে গেছে, অনেক ওয়ার্ডে বন্ধ হয়ে গেছে। দিতে হবে, এই চালগুলোকে নিয়মিত দিতে হবে, বন্ধ করা যাবে না। হোল্ডিং নাম্বার গরিব মানুষ বস্তি এলাকাতে পাচ্ছে না, পাট্টা একটাও পায়নি। পাট্টা, হোল্ডিং নাম্বার, জলের বিভিন্ন অসুবিধা হচ্ছে, জল দিতে হবে। প্রায়োরিটি থাকতে হবে বস্তি, গরিব মানুষ, গরিব ছাত্রছাত্রীকে নানাভাবে অ্যাসিস্ট করতে পারতো, সাহায্য করতে পারতো শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, করেছে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে। অ্যাডমিশনের টাকা, বই কেনার টাকা বন্ধ হয়ে আছে, এই সুযোগটা নাই এই মুহূর্তে, এই সুযোগ করে দিতে হবে। এই দাবিগুলি সমস্যাগুলির সাথে তো আমিও সহমত। কারণটা হচ্ছে যে আজকের এই যে লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে এবং করোনা জনিত পরিস্থিতিতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ধরনের মানুষরা। এর ওপরে আবার জিনিসের দাম বাড়ছে, এর ওপরে তারা যেখানে বসবাস করে বস্তি, রেলের জমি ইত্যাদি জায়গাতে আবার উচ্ছেদ করারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যেমন হাউজিং ফর অল, ওরা বলল যে হাউজিং ফর অলের একটা মানে গভর্নমেন্ট থেকে একটা সার্কুলার দিয়ে বলেছে এখন কাউকে টাকা দেওয়া যাবে না, টাকা দেওয়াটা বন্ধ রাখো এই লকডাউন পিরিয়ডে বা এই করোনাজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। ওরা এই কথাটাই বললো, তার ফলে লোকগুলো সাফার করছে। আমি ইতিমধ্যেই বিষয়টা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কলকাতায় কথা বলেছি, চিঠি আমরা দিয়েছি, আমি ওদের কথা দিয়েছি, ব্যাপারটা আমরা আবার দেখব বিষয়টা। বিশেষভাবে ওরা একটা কথা বলেছে, বহু গরিব মানুষ আছে রেলের জমিতে বসবাস করছে, আগে তারা হোল্ডিং নাম্বার পেত, এখন তারা হোল্ডিং নাম্বার পাচ্ছে না। সেই বিষয়টাও আমি আলোচনা করব, আমাদের বোর্ডেও আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। সামাজিক সুরক্ষা ভাতা যেটা কর্পোরেশন নিজেরা দিতাম, 10 কেজি করে চাল এবং তার সাথে সামাজিক সুরক্ষাটা ভাতা দেওয়া হতো বৃদ্ধ গরিব মানুষদেরকে, সেটা বন্ধ আছে। আর্থিক অসুবিধা, আমাদের কোনো অর্থ নেই, গভর্নমেন্টের কাছে কোনো টাকা পাচ্ছি না, খুব কষ্ট করে আমরা দুদিন মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও আমি কথা দিয়েছি 7 দিনের মধ্যে অন্তত 1 মাসের জন্যে যাতে চাল 1 মাসের জন্য যদি ভাতাটা পায়, সেই কথা আমি দিয়েছি, যেভাবে হোক আমরা দেবো। আর 5 কেজি করে যেটা চাল পাওয়ার কথা, যারা চালটা পায়নি সেটা যাতে অবিলম্বে পায়, সেটাও একটা কথা দিয়েছি। আর ওদের কথা হচ্ছে পুজোর আগে অন্তত করে 10 কেজি করে যাতে চালটা পায় সেটা দেখার জন্য বিশেষভাবে ওরা বলেছে। केंद्र सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आज पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लगातार केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध करती रही है। 16 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस किसानों के साथ केंद्र के किसान विरोधी नीतियों के विरोध में कृषि क्षेत्रों में खड़ी हुई। उत्तर दिनाजपुर कालियागंज ब्लॉक किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से आज धनखेल किसान मंडी में केंद्र सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कालियागंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति नेताई वैश्य, जिला परिषद के मेंटर असीम घोष, ब्लॉक किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असीम चौधरी सहित अन्य नेताओं और काफी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया था। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতো 8, 14 দুদিন কর্মসূচি অলরেডি হয়ে গেছে। আজকে কিষাণ
ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্যে প্রতিটা ব্লকে 2014 সালে থেকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা যেটা উপলব্ধি করেছি বা কিষাণ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যেটা উপলব্ধি করেছি যে ভারতবর্ষের যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি পরিচালিত নরেন্দ্র মোদীর সরকার তাদের যে ভ্রান্ত কৃষি নীতি এবং ভারতবর্ষের 70% মানুষ কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের উন্নয়ন না ঘটলে যে ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয় সেই কথাটাকে ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষে একটা ভ্রান্ত কৃষিনীতি তিনি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বা চাপিয়ে দিয়েছেন। কৃষকদের বিভিন্ন সার থেকে শুরু করে কৃষিজাত পণ্য সমস্ত ভর্তুকি সরকারের পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, কৃষিজাত পণ্যের দাম পাচ্ছে না, অথচ কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রীর দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং কৃষিজাত পণ্যের উপর জিএসটি বসানোর ফলে কৃষিজাত পণ্য এবং কৃষিকাজ করতে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত জিনিসের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুরের পক্ষ থেকে এখানে ব্লক সভাপতি উপস্থিত আছেন নুরুল চৌধুরী সাহেব। সমস্ত ব্লকের সাথে সাথে আমরা কালিয়াগঞ্জেও কৃষকদের উপর যে ভ্রান্ত কৃষিনীতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রতিবাদ করে আমরা মাঠের আইলের মধ্যে দিয়ে মিছিল করে আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা ধিক্কার জানাই। कोरोना फैलने के बाद से पहली बार वह अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा कर सकती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा ले सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बनर्जी 21 सितंबर सिलीगुड़ी पहुंच रात ठहर सकती है। राज्य के सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि बनर्जी 21 सितंबर सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां एक रात ठहर सकती है। उन्होंने कहा कि अगले दिन वहां सिलीगुड़ी में सचिवालय की शाखा, उत्तर कन्या में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि 23 सितंबर को मुख्यमंत्री उस स्थान पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कूच बिहार के जिलाधिकारियों के साथ एक और प्रशासनिक बैठक कर सकती है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री का कोलकाता वापस लौटने का कार्यक्रम है। मार्च महीने में कोविड-19 के फैलने के बाद से ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल जिलों का यहां पहला दौरा होगा। सारा बंगला तृणमूल किसान हित मजदूर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की किसान विरोध नीतियों का किया गया विरोध। सारा बंगला तृणमूल किसान हित मजदूर कांग्रेस की ओर से बुधवार को केंद्र सरकार की कृषि विरोध नीतियों के खिलाफ पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्य आज खेत खलिहानों में जाकर केंद्र सरकार की किसान विरोध नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने केंद्र सरकार की कृषि विरोध नीति एवं खाद में दी गई सब्सिडी हटाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के सदस्यों ने बंगाल को कृषि प्रधान राज्य बताते हुए कहा कि केंद्र इस कदम से इस राज्य के किसानों को काफी नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा परियोजना में किसानों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराए जाने का भी विरोध कर रहे थे। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में भी आज संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से मादरीहाट, बरपाड़ा ब्लॉक के विभिन्न इलाके, अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक समेत जिले के सभी क्षेत्रों में आज संगठन की ओर से केंद्र की जन विरोध नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीबों में बांटा गया भोजन अगले 1 सप्ताह तक चलेगा कार्यक्रम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा की ओर से गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता सुशीतल सेना ने बताया कि बृहस्पतिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 70वीं जन्म दिवस है। इसके मद्देनजर अगले 1 सप्ताह तक पार्टी की ओर से गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान रिक्शे वाले से लेकर सड़क पर चलने वाले राहगीर, गरीब व असहाय लोगों के बीच फल व विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। आगामीकाल
আমাদের গরিবের প্রধানমন্ত্রী, সকলের প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভ জন্মদিন। সেই জন্মদিন উপলক্ষে 13 থেকে 20 পর্যন্ত আমাদের সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। আজকে সেই সেবা সপ্তাহে অঙ্গ হিসাবে 8 নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের গরিব কিছু মানুষকে এলাকার কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদেরকে কিছু মিষ্টি, পাউরুটি, কলা আর নানান জিনিস এবং জল তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই কার্যক্রম গোটা সপ্তাহ ধরেই চলছে। আজকে আমরা সকালে উপস্থিত হয়ে সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি এবং আরও অনেক সেবামূলক কাজ 8 নম্বর ওয়ার্ডে চলছে। আগামীতে সেই কাজগুলো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ আমরা জানিয়ে দেব। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 35 परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल, मंत्री ने थमाया दलीय झंडा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के समर्थकों का दल परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में कूच बिहार के नाटाबाड़ी विधानसभा केंद्र के नाटाबाड़ी चांडाजलिन इलाके में बुधवार को 35 परिवार भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। स्थानीय विधायक व राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पूरे राज्य में लोग तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार राज्यवासियों के कल्याण के लिए कई योजना लागू की है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। मंडल সম্পাদক ছিলাম, সেই উন্নয়নের মধ্যে আমরা কিছু সংখ্যক লোক খারাপ পেয়েছিলাম, তার জন্য আমরা একটু বিজেপি করেছিলাম। তো আজকে বিজেপি 6 মাসে যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে, আমরা সেটা করতে দেব না। তাই আমি পুনরায় তৃণমূলে যোগদান করলাম। এই আদর্শে এবার মমতা ব্যানার্জির মা মাটি সরকারের পাশে থেকে
21-এর নির্বাচনে জয়লাভ করা। বিধানসভার অন্তর্গত নাটাবাড়ি 2 নম্বর অঞ্চলের চারালজানিতে 35টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাদের তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা মাঝির নীতি আদর্শের প্রতি আস্থা রাখছেন, তাদের গ্রহণ করা হলো, তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হলো। এরা যুব মোর্চার বিজেপির যুব মোর্চার নেতৃত্ব ছিল। তারা দেখেছে যে বিজেপি একটা ভাওতাবাজ দল, তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায় না, কঠিন অবস্থায় মানুষের কথাও শুনতে চায় না, তারা নিখোঁজ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তো সেই ক্ষেত্রে তারা হতাশ হয়ে মমতা মাঝির উন্নয়ন পরিষেবা এবং মমতা মাঝির নীতি আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে 35টা পরিবার আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাদের সাদরে গ্রহণ করা হলো এবং তাদের মর্যাদা দিয়ে যে বুথের এরা রয়েছে সেই বুথের সভাপতিকে অনুরোধ করব তাদের বুথ কমিটির অবিলম্বে সদস্য করে নেওয়ার জন্য। एक हफ्ते में देश में कोरोना वायरस के 5.55 लाख नए संक्रमित मिले। ये अमेरिका और ब्राजील की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत में अब तक आ चुके हैं 50.18 लाख मामले। देश में कोरोना वायरस के केसेस 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। हर रोज 85 से 96 हजार के बीच नए मरीज सामने आ रहे हैं। यही ट्रेंड रहा तो नवंबर तक 1 करोड़ केसेस हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते पर नजर डालें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। दुनिया की 3 सबसे प्रभावित देश अमेरिका, भारत और ब्राजील के 9 से 15 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो इस दौरान देश में 5,55,038 मामले सामने आए। वहीं अमेरिका में 2,27,055 और ब्राजील में 1,84,777 पॉजिटिव मामले सामने आए। इस दौरान पूरी दुनिया में 19,53,602 संक्रमित बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सुबह अपने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक मंगलवार को 90,123 मरीज मिले और 1,290 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,360 हो गई है, जिनमें से 39,42,361 मरीज ठीक हो चुके हैं। 9,95,933 एक्टिव मरीज है। वहीं अब तक कुल 82,066 लोगों की जानें जा चुकी है। नशे के शिकार युवकों ने अपने ही दोस्त पर किया जानलेवा हमला। गंभीर अवस्था में घायल युवक को करा गया है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती। रायगंज शहर के कसरा मोड़ पेट्रोल पंप के नजदीक उस समय काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया जब पता चला कि कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घायल युवक का नाम सुशील देव शर्मा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला नशे से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुशील देव शर्मा ने अपने कुछ दोस्तों को नशा करने के लिए 1,000 रुपए उधार दिए थे। मंगलवार रात को वहां दोस्तों से रुपए मांगने के लिए पहुंचा था। इसी को लेकर दोस्तों के साथ उसकी बहस शुरू हो गई और इस दौरान अंकित शर्मा नामक एक युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल रायगंज में पिछले कुछ दिनों से नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। युवक नशा के अधीन होकर अपराध मूलक कार्यों को भी अंजाम देने लगे हैं। সুশীল দেব শর্মা। কিভাবে হলো এটা? পিছন থেকে একজন অ্যাটাক করেছে। সেটা কি দিয়ে মারছে? এখন কি দিয়ে মেরেছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না। ছুরি মারছে? ওর কোনো কিছু একটা ধারালো জিনিস দিয়ে মেরেছে। ধারালো জিনিস দিয়ে মেরেছে? হ্যাঁ। কোথায় কোথায় মারছে? মাথাটা এইসব সাইডে আর একদম চোখের মধ্যে মারছে। যা দেখি। কি দিয়ে মেরেছে? এখন অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে মেরেছে সেটা আমি বলতে পারছি না। কেন কি হঠাৎ করে মারলো কেন এরকম? আমি স্যার ওখানে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ঠিক আছে, আমি ওর কাছে টাকা পাই, তো ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, পাশে আবার ও আবার চাইছেন আমার উপরে অ্যাটাক করে দিয়েছে। মানে তুমি যার থেকে টাকা পাও তার অন্যজন এসে তোমার মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম ওর যে মারলো? যে মারলো তার নাম অঙ্কিত। অঙ্কিত কি? অঙ্কিত দেব শর্মা। আচ্ছা, যার সাথে ঝামেলা ছিল তার নাম কি? ওর সঙ্গে তার এমনিতে কোনো ঝামেলা নেই স্যার। টাকা যার কাছে পাও তার নাম কি? টাকা যার কাছে পেয়েছে তার নাম হচ্ছে শ্যামল। শ্যামলের থেকে টাকা পাও কিন্তু অঙ্কিত এসে তোমাকে ছুরি মেরে দিল, তাই তো? হ্যাঁ, যা মেরেছে ও মেরেছে। আচ্ছা, পড়াশোনা করো? পড়াশোনা স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওপেন ইউনিভার্সিটিতে 3rd ইয়ারে আছে। আর এমনি কোনো কাজ বাজ করো? এমনি কাজ না, টুকটাক স্যার, এমনিতে সমস্যা। যে মেরেছে সে কি করে? বেকার স্যার।
नेपाल में काम नहीं आई चीन से यारी, संकट के समय भारत ने की मदद, भेजी दवाइयां। नेपाल को चाइना की यारी काम नहीं आई। संकट के समय भारत ही नेपाल के काम आया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भारत सरकार ने नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नेपाल को भारत ने दवाओं की दूसरी खेप भेजी है। ये दवाई कोरोना महामारी में नेपाली जनता के लिए मददगार साबित होगी। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने मंगलवार को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली से काठमांडू में मुलाकात कर उन्हें दवाइयां सौंपी। भारतीय दूतावास के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए भारत नेपाल की मदद कर रहा है। भारत सरकार का यह कदम नेपाल के आम लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। 10 दिन पहले टिकट बुक हो सकेंगे। किराए हमसफर एक्सप्रेस के बरकरार होंगे। इंडियन रेलवे 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यह सर्विस श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा होगी। इनमें से 38 ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली 2 क्लोन ट्रेनों में सफर करने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस के बरकरार किराया देना होगा। इन ट्रेनों में 10 दिन पहले टिकट बुक कराई जा सकेंगी। इनका स्टॉपेज भी सीमित होगा। यह सिर्फ रूट में आने वाले ऑपरेशनल हॉल्ट और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर रुकेंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 19 सितंबर से शुरू होगी। एसपी का फर्जी अकाउंट खोले जाने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। जांच में जुटी साइबर क्राइम थाने की पुलिस। फेसबुक के संपर्क में जिला पुलिस। इससे पहले मालदा के डिप्टी एसपी का फर्जी अकाउंट से की थी पैसे की मांग। मालदा में एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। एसपी आलोक राजौरिया ने जिला साइबर क्राइम थाने को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अपने परिचित लोगों को इस बारे में सतर्क किया है। वहीं पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि एसपी के नाम पर फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया है। इससे पहले मालदा के डिप्टी पुलिस सुपर शुभतोष सरकार के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों को मैसेज कर उनसे आर्थिक मदद का आह्वान किया गया था। जिला साइबर क्राइम थाने की पुलिस उस घटना की जांच कर रही है। गौरतलब है कि एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने को लेकर पुलिस महकमा सख्ते में है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस इस बारे में फेसबुक प्रबंधन से भी संपर्क में है। কিভাবে নজরে এলো এবং কি ঘটনা? দেখুন, যারা আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে আছে, আমার যেটা একটা ফেসবুক প্রোফাইলই আছে, তার আমাদের ফ্রেন্ড যারা বন্ধু, তারা আমাকে ইনফর্ম করে ইমিডিয়েটলি। দেন আমি আমার ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইদেরকে এটা ইনফর্ম করি अन्य যেটা এক আমার ছবি দেখিয়ে এটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটা সরাসরি ফেক আছে। ও যদি কোনো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট या কোনো আদারওয়াইজ রিকোয়েস্ট জেনারেলি টাকা পয়সা রিকোয়েস্ট পাঠায় যারা এই ফেক প্রোফাইল ক্রিয়েট করে, তাহলে সেটা কোনোভাবে রেসপন্ড না করে। অ্যান্ড কেন আমি সঠিক টাইমে দিতে পেরেছিলাম তাহলে অনেকটাই করে নিই। অ্যান্ড আমি লিগাল অ্যাকশন নিচ্ছি। অলরেডি আমাদের সাইবার থানা যে আছে এই ম্যাটারটাকে টেক আপ করেছে। আগে ডিএসপি ডিএনটিও একটা ফেক প্রোফাইল করেছিল, সেটাও টেক আপ করা হয়েছে। এখন ওই প্রোফাইলটা নেই, বাট প্রোফাইল কারা ক্রিয়েট করেছিল তার জন্য আমাদের তদন্তটা চলছে। দেখুন, যারা আমাদেরকে ইনফর্ম করেছে বেসিক্যালি এই ফেক প্রোফাইলের মাধ্যমে অনেক বেসিক্যালি টাকা পয়সা চাওয়া হয়। টাকা পয়সা এইভাবে চাওয়া হয় কি কোনো কোভিড আছে ওই এলাকায়, তার জন্য তার হেল্পের জন্য টাকা পয়সা দিয়ে দিতে হবে, এই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট আছে। অ্যান্ড ফেসবুক মেসেঞ্জারে ইউজ করা হয়। WHO ने कहा 20 साल से कम उम्र वाले सिर्फ 10% लोग हुए हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। दुनिया में अब तक 2.97 करोड़ बने कोरोना के शिकार। 9 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,97,15,706 हो चुका है। अच्छी खबर है कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी अब 2,15,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 9,38,000 से ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी आंकड़े की माने तो 20 साल की कम उम्र के लोगों पर महामारी का खतरा काफी कम है। इसकी एक वजह उनकी ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी है। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए हैं उनमें 20 साल से कम उम्र वाले मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। इस उम्र वाले सिर्फ 0.2% लोगों की मौत हुई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।
है।